Hello friends, am I audible? Please reply. Am I audible? Yes. Good evening Vikas, Nikhil ji. How are you? How's going? कैसे हो आप सब लोग? I hope everybody is fine. Yes, good. Yes. So we'll wait for another 1 or 2 minutes because people are joining. Okay? हम 1 से 2 मिनट के लिए वेट करते हैं because people are joining. Okay. आप कैसे हो सब लोग? How's going on? कैसे चल रहा है आपका मार्केट, स्टॉक मार्केट? I hope you are doing good. Okay. See, okay, very bad. No issue, Akshay. We'll discuss that. Today we are going to discuss this. आपके जो भी queries है, जो भी problems आपको आ रहे हैं market में, you can ask in this session. And here again, you are all welcome in the Stock Pros free webinar session. And today the topic is very important. That is trading plan. Okay. So we are going to discuss today very much about planning and how exactly a trader who is going to plan his complete way, or will say how to execute everything with proper plan. Okay, so are you ready for that? So I want your big yes so that we can start. Yes, thank you very much. Yes. Okay, so people are joining. Let them join because मैं ये नहीं चाहता कि कोई मिस करे हमारे आज के कंटेंट, बिकॉज वो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं दोज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द ट्रेडर्स. ओके, ट्रेडर के हिसाब से, ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं. सो विल वेट फॉर फर्दर 1 minute. पीपल आर ज्वाइनिंग. ओके, आई होप यू हैव ज्वाइन अवर स्टॉक प्रोज टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इसके पहले के भी जो सेशंस होंगे वो आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे. यस, आई विल यूज बोथ मिक्स लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. Yes. Sarvana ji, no issue. So we'll discuss that with mixed language. Yes, some people are saying that they are not knowing Hindi and English. No issue. We'll discuss in both the languages. Okay. So here your host today is Parag. I am Parag. I am the mentor and trainer in Stock Pro. Yes, we'll discuss your question, Ankit. जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ेगा, we'll discuss that. Okay. So today's host is I am Parag, and I am host of today's session. And I am trainer as well as mentor in Stock Pro. मैं आपके जैसे ही. Yes, we'll discuss about margin also. Yes. ये तो हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास. सो मैं आप लोगों की तरह ही was a very normal trader. I have started trading 7-8 years back. Then I thought there are so many mistakes I am doing, so many things that are not as per the rules and discipline that should be done by any good trader. Yes, and I used to do very informal kind of trading. मतलब एकदम फॉर्मल ट्रेडिंग के जैसे जो लोग मिस्टेक्स करते हैं इस तरीके से मिस्टेक्स करता था मैं. एंड आई यूज्ड टू गो बिहाइंड one strategy then other, want to catch everything. Something is posting, I am going to catch that. अगर दूसरा कोई कुछ पोस्ट कर रहा है then I want to catch that. And I'm getting jumbling out everything. And I don't know what is a planning, how to do a trading with a proper execution of strategies with risk management and trade management. Then I used to do so many mistakes while taking risks in trading. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं मिस्टेक कर जाता था. एंड आई कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. कभी कुछ रिस्क लेके ट्रेड करता था, कभी कुछ रिस्क लेके ट्रेड करता था. सो एवरीथिंग इज रैंडम. सो आई कैन नॉट डिसाइड what to do, which is the good thing for me. Then I tried to maintain one good rule book जिसमें मैंने रूल्स ऐड किए स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, पोजिशनल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से. देन ऑप्शंस अभी करता हूं तो ऑप्शंस के हिसाब से. देन एवरीथिंग इज गोइंग विथ अ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर रूल. फिर मैंने मेरा एक्सेल शीट मेंटेन किया, लॉग बुक मेंटेन किया, उसमें कौन सी चीजें मेरे फेवर में जा रही है,
which things are not in my favor. I used to write down those things in my Excel sheet, and then slowly, gradually, I come to know the mistakes I am doing, and I try to overcome those mistakes. And slowly and gradually मेरे को पता चला कि एक ट्रेडर को मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए. And that is the topic of today's discussion, that is trading is a plan. Okay, and this plan we have to execute with proper skill and a positive attitude. That is उसको बोलते हैं हम trading psychology. Trading psychology and attitude, इस लोगों ये टॉपिक को most of the people in the market they are just keep aside. मतलब वो लोग उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, and because of that they will see huge losses in their trading capital. Now what is need of planning? जैसे कोई भी चीज हमको प्रॉपर वे में करना है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस कैसे एक्सिक्यूट करना है, हाउ टू एग्जैक्टली एक्सिक्यूट द स्ट्रेटेजी दैट यू आर लर्निंग, और उसको किस तरीके से रिस्क में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हुए हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स, दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस, और उसको बोलते हैं प्लानिंग. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि हाउ टू एक्सिक्यूट एनी ट्रेड, ओके, हाउ टू एक्सिक्यूट एनी ट्रेड, अगर मैं आपको बोलता हूं, सो हाउ यू विल जस्ट आंसर मी. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस. आपको अगर मैं सिंपली एक कॉल देता हूं, लास्ट कॉल जो हम लोगों ने दिया था, आई थिंक यू हैव गॉट दैट कॉल, भारती एयरटेल. भारती एयरटेल का कॉल आपने किया था इन इंट्राडे लास्ट टाइम. We have shared those in the telegram channel. Okay, we'll discuss that telegram channel. Yes, Akshay, you have executed that. तो simply for example 390 के above में उसका buy था, and 384 is like what our stop loss, मतलब 6 point का stop loss है, and 390 that was the entry. अगर आप लोगों को strategy पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है what is the logic behind that trade, then people will just catch just behind that trade. उसको वो लोग क्या करेंगे, उसको जस्ट उसको कैच करने की कोशिश करेंगे. सपोज द स्टॉक इज नाउ मूविंग 390, देन इट्स कमिंग डाउन टू 389, और फिर आप गलत जगह पे एंट्री ले लोगे. आवर एंट्री इज वेरी प्रिसाइज दैट इट शुड बी अबव 390 एंड नियर टू 390. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सिक्यूट द ट्रेड प्रॉपरली, यू विल टेक योर ट्रेड एट different entry level. Then what will happen? Stock is just not going in your favor. And if the stock is not going in your favor, the emotions will be there. Emotions आपके माइंड में अटैच होंगी, और आपको ये पता चलेगा कि आपने जो चीज की वो गलत हो रही है, एंड यू फील द व्हाट इनसिक्योर, फियर आ जाएगा आपको, एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग डाउन. इट विल बी नॉट इन योर फेवर, एंड देन यू विल डू सम मिस्टेक. नाउ सपोज एंट्री इज ट्रिगर्ड, 390 के अबव एंट्री ट्रिगर हो गई है, देन हाउ मच क्वांटिटी और हाउ मेनी क्वांटिटी यू आर गोइंग टू टेक इन योर ट्रेड. अगर आपको वो पता नहीं है, आपको रिस्क नहीं पता, एंड यू विल टेक एनी रैंडम रिस्क इन दैट पर्टिकुलर कॉल, देन व्हाट विल हैपन? जब एक पॉइंट 390 से आपको पॉजिटिव वे में जाएगा, 391 जाएगा, तो आपके इमोशंस आपको फिर से ऐड होंगे. ओके, एंड 390, 391, 392, और आप क्या करोगे, 392 पे आपका ट्रेड बुक कर लोगे. अब क्या होगा, ट्रेड विल अगेन मूव इन योर डायरेक्शन, एंड इट हैज मेड हाई एट दैट डे 396.7. 6.7 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होने वाला था, बट यू हैव बुक दैट प्रॉफिट फॉर जस्ट 2 पॉइंट्स ओनली. देन व्हाट यू फील, आपको कैसा लगेगा, हाउ डू यू फील? इंस्टेड ऑफ बुकिंग 6.7 प्रॉफिट, यू आर जस्ट बुकिंग 2 पॉइंट प्रॉफिट. हाउ डू यू फील? How do you feel if you are just making 2 points of profit? Sad, of course. Sanjay is saying sad. Yes, Akshay is saying he is feeling like left out. Bad. Why? Because you are getting a call, that call was good, but you don't know how to execute the trade properly with your rules and discipline. Okay? That is the very important thing people are just missing out in their trading. और उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम, देयर इज नो नॉलेज ऑफ प्लानिंग.
प्लानिंग, यस समवन, आप बोल रहे हो निखिल, यू विल फील, यू आर जस्ट फीलिंग विथ इमोशन, फियर, फियर इज द इमोशन, ओके, नो प्लानिंग, एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज में प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। That's why see most of the people in television, in your news channel, people are just broadcasting and telling their calls. Calls are just bang on, but still people are not making good amount of profit क्योंकि उनको ये logic पता नहीं चला। Okay, so this is called trading without a knowledge। जैसे संजय जी ने बताया अभी, संजय is saying trading without full knowledge। तो that's why कोई एडवाइजरी आप लेते हो या कोई किसी का कॉल लेते हो, दैट विल नॉट गोइंग इन यूर फेवर बिकॉज यू डोंट नो कि वो स्ट्रेटेजी में, वो ट्रेड में कितने तक का जाने का फ्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हो आप, इफ यू आर गोइंग मार्केट एंड इफ यू डोंट नो कि आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल है, ओके okay? और बीच में जाने के बाद में गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है, देन हाउ डू यू फील? सेम थिंग, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज that how much petrol is there in your bike, okay? So if the fuel in your bike is at a proper amount or at a proper level, then you can go far away, okay? So same thing in the trading also, just by getting good calls or everything, we are posting good calls, you are just aware of those things, that's why you are here. But if you don't know how to execute that with a proper risk and proper trade management, then everything is not going in your favor. So that's why in market people are just not making good amount of profit. So that's why we need a good amount of planning. Now I will give you one more example. Suppose you are taking two trades in a single day, and if you are taking example of Infosys, अगर हम Infosys का ट्रेड लेते हैं, 1000 रुपीज का कॉस्ट है, and suppose 10 point is stop loss, so your entry is 1000 and your stop loss is 990, okay? And in that 10 point stop loss, if you are trading 500 quantity, so how much risk is there in that trade? So I will take one Excel sheet for you. See, your entry in a trade is 1000 rupees and your stop loss in that trade is 10 point rupee, 10 point means your stop loss level is 990, and you are trading suppose 500 quantities, okay? 500 quantities you are trading. Then what is the risk in this trade? Can you tell me? Yes, exactly, 5000 is your risk. This is your first trade, okay? In this first trade, suppose your stop loss is hit, what will happen? You will lose 5000 rupees, okay? Because 5000 was the risk in this trade. Now in the second trade, if other trade is there, suppose any Reliance trade you are taking a trade on Reliance, and suppose the 20 point is your stop loss, and here you are trading quantity, suppose you are just trading quantity of 100 rupees, and on this trade you are making 20 points profit. So what is your risk in this trade? Your stop loss is 20 points, means 1980 is your stop loss. You have just traded 100 quantity, so your risk will be 2000. Now in this you have made profit of 20 points, means you have booked your profit at 2020. Then how much profit have you drawn from this trade? That is 100 quantity multiplied by 20 points, so that is equal to 100 quantity multiplied by 20 points, that is 2000. So in these two trades, if you calculate the total amount of profit or loss you have made, so in the first trade you have made 5000 rupees loss, and in the second trade you have made a profit of 2000 rupees, okay? Now you can say I have just made a loss of 10 points here, but I have drawn 5000 rupees loss, and in this trade I have made 20 points of profit, but still I can just take 2000 rupees profit. Then overall loss is, if you calculate here, that is around 3000 rupees. So minus 3000 is your loss. Now what is there, if you have drawn one trade in your way and other in your other is not in your favor, then what will happen? Your risk to reward ratio is not good. In some trade you are taking risk of 5000 rupees, and in other trade you are taking risk of only 2000 rupees,
And if you are not balancing your risk portfolio properly, if you are not following your risk management thing in your plan, in your trades properly, though you are making good profit in some trades, and because of that you are making huge losses in some other trades, so overall you are making losses. So that is the thing people are not considering in their trading, और उसी को बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट. I hope you understand this thing from this example. Okay, so इसीलिए लोगों को ये नहीं पता रहता कि people are just making losses because of bad risk management or bad trade management, and this is part of planning. So that's why we say that planning is must in your trading. Okay, so before going on next slide, we'll just hold one thing because I'm getting one important call from our just I want to get that call, I want to take that call. Just keep patience, we'll hold for 1 or 2 minutes. Okay. Hello. Hello friends, sorry for interruption. Our team member Sachin is with me now. Uh, because of some reason, there was a technical issue with him, so that's why he has joined now. Yes, Sachin, we have started our session. Sachin, are you there? Good evening, Parag ji. Yes, good evening. So please carry on. I will be listening, and if I will have some questions, I will raise the questions on Yes, behalf yes, of. definitely. Yes, yes. So you can ask your question between the our slides or like that. If you have any Yeah, yeah. question regarding slides, और आप जैसे किसी के मतलब बिगिनर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो यू कैन आस्क मी बिटवीन दैट. Sure, sure. Yes, yes. So this is what the planning is required in trading. In this very simple example, you have just understand that planning is must in trading, and most of the people are just unaware of the things that we are going to discuss in this slide. So what is exactly a trading plan? Trading plan होता क्या है? तो यहाँ पे एक सिंपल ब्रॉड व्यू में हम ये स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. First thing is that strategy is there. Strategy is just only 20% in trading. 20 to 30% is there for strategy only. Now see, there are so many free strategies are available on YouTube and everywhere. But you are just catching all the strategy. You want to catch this strategy, ORB, and just any range breakout, any particular what super trend strategy or RSI strategy. So many strategies are there. And because of jumbling out in many strategies, you don't know what is the proper utilization of that strategy. वो strategy के पीछे logic क्या है, that is most important. And see nowadays people are just mixing so many indicators in that strategy. वहाँ पे RSI भी होता है, then oscillator भी होते हैं, then super trend भी होता है, then कोई moving averages भी होते हैं. So many indicators are there. And like people, जैसे हम लोग सब अलग अलग हमारे वेज होते हैं, हमारे कुछ मतलब वे आउट होते हैं, या हमारे कुछ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उसी तरीके से ये इंडिकेटर भी क्या करते हैं, अलग अलग टाइप में अलग अलग बाय और सेल सिग्नल देते हैं. सपोज यू आर यूजिंग 5 indicators in your strategy. RSI is telling buy, super trend is just telling you that no buy entry is triggered, and oscillator is saying you have to wait for the entry. Now what will happen, some indicators are saying buy, some indicators are saying sell, and some indicators are just neutral at that time. You could not take entry at proper level. Yes, VWAP is also there, volume breakout is there, so many indicators are there, and people are just mixing one strategy into other. और उससे होता क्या है, you cannot take trade at proper level with proper stop losses and with proper risk to reward ratio. उससे होता क्या है कि at wrong time you are taking entry, when momentum is just dying out you are taking entry into that trade, and that's why
मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट व्हाट हैंग आउट, मतलब वो बिल्कुल वो ट्रेड में फंस जाते हैं और ऐसे टाइम पे एंट्री लेते हैं कि उनको वो समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड. So strategy is just only 30% in trading, I will say, because no any strategy is perfect strategy. If such perfect strategy is there, you can just buy. People उसके पीछे जाते थे and they will just buy that strategy at any cost. Okay, so no strategy is perfect in this world. The second point is what? Probability of picking trades. I will give 30% in trading plan for this thing. Now, what is the probability of picking trades? See, if you are just scanning your screener, or if you are just trying to search out trades in live market, or at end of the day for positional trading, for intraday trading, for whatever, if you are having 5 trades in your basket, जैसे हम परचेस करने जाते हैं ना किसी चीज को, जैसे हमको शर्ट खरीदना है, if you want to buy any fruit or any vegetables like that, so you have basket, and in that basket suppose the 5 trades you are just searched and you have just put those trades in the basket. What will happen? You don't know which trade you have to execute, which is the best probable trade that can give me a good reward. Now how to decide that? That is the important criteria. If suppose tomorrow or in the live market, suppose there are 5 trades, suppose Bharti Airtel was there, Vocard is there, and suppose Ultratech Cement was there, that was buzzing in the last session in the early morning. We have scanned that trade also. But how to pick the good trades? That is the really important thing. So people are just behind or just go behind the number of trades. But instead of going number of trades, if you find out the way or method or a rule that this is my golden rule and I will follow that rule while picking out good trades out of n number of trades that in my basket, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ट्रेड्स. उसके पीछे कौन से पैरामीटर होते हैं? तो ये सेशन में आपको मैं सिंपल वे में बताऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब जो ट्रेड में स्टॉप लॉस लेवल कम है और टारगेट अचीव होने के चांसेस ज्यादा है, वो ट्रेड उसको बोलते हैं, एक वे बोलेंगे हम उनको, एक सिंपल रूल है उसमें कि उसको बोलेंगे हम अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को बताते हैं इन आवर ट्रेनिंग, दैट विच इज द प्रॉपर वे टू टेक अ गुड प्रोबेबल ट्रेड. Yes, volume is also there, Rajesh, but with volumes are coming out, but most important thing is risk to reward ratio. And see, from my experience, I come to know that if you are holding a good risk to reward ratio, the whatever the margin or the SEBI rules are there or anything which is not in your favor, and if only one good risk to reward ratio and proper strategy if you are executing with a proper risk management, the thing will go in your favor. The chances of the thing will go going in your favor, that would be more. So that's why the probability of picking trades are more. सिंपल वे में आपको मैं बताऊं, if you are making a habit of discarding trades, that could be a better. मतलब अगर आपके पास में 5 से 6 ट्रेड है, आपने अगर 5 से 6 ट्रेड्स आपके लाइव मार्केट में या एंड ऑफ द डे निकाले हैं फॉर द नेक्स्ट डे, then if you are discarding more trades, that is good thing. Discarding is one of the good habit that you have to implement in your trading plan. So I am telling you all these things free, with no any fees. That is really important thing. You can just take those things and you will implement those. You can implement those things in your trading plan from next day also. But see, बात करना बहुत आसान है, एक्सिक्यूट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है. और उसको कैसे एक्सिक्यूट करना है, कौन से रूल्स बनाने हैं और हमारी ट्रेडिंग वेज में हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और वो कैसे करना है, हाउ टू ओवरकम योर मिस्टेक्स, हाउ टू ओवरकम योर इमोशंस, because see, most of the people are just taking the trades because of emotions. So I will always say, that is my favorite quote, that you have to trade, a good trader always trade prices and not emotions. So you have to just trade prices, and we always take price action strategies in our trading,
because if you are adding more indicators and more complex things and more calculations in your trading, you will just do calculation and you will not execute trades at proper time. आप calculation ही करते रह जाओगे, आप emotions से ही खेलते रह जाओगे, आप इंडिकेटर के साथ में ही लगे रहोगे and you will don't know which is the proper entry और proper entry निकल जाएंगी. So मेरा कहना यही है कि you have to be precise with a good probability trade, and strategy part is just 20 to 30% in your trading. Now what is the best strategy? I will say exact money management or will say thumb rule, और उसको बोलते हैं हम money management is a best strategy and that is a thumb rule, और मेरे हिसाब से it's a 50% in your trading. If you are knowing your capital, then no any SEBI or no any, I will say the SEBI, those the margins margin regulations, those are implemented by SEBI, that is good for retail traders. We'll discuss that more जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और वो कैसे एक रिटेल ट्रेडर को फायदेमंद है विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई विल से कि अगर आपको आपकी कैपिटल पता है एंड आपको आपके एग्जैक्ट मनी मैनेजमेंट पता है, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ गुड ट्रेड्स विद अ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, देन यू आर अ गुड ट्रेडर. Because no any strategy is perfect in this world, the only strategy is perfect in this world is exact money management, and money management is a part of risk management. तो आप कितना रिस्क कौन से ट्रेड में लेना है, कितना रिस्क अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो आपको निकल जाना है. बिकॉज सी the most important difference between a retail trader and pro trader is just a proper risk management. See, pro trader क्या करता है, he is making a good rule book और वो डिसिप्लिन से वो रूल बुक फॉलो करता है. जब भी उसको लगता है कि आई हैव डन अ मिस्टेक इन एक्सिक्यूशन, इन आई हैव नॉट एक्सिक्यूटेड माय स्ट्रेटेजी प्रॉपरली, और जब स्ट्रेटेजी एक्सिक्यूट करने के बाद में अगर इफ ही सी सम गुड सम थिंग्स आर नॉट फेवरिंग इन हिज ट्रेड, मतलब अगर मैंने एंट्री ले लिया और मुझे पता चल रहा है कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माय डायरेक्शन, देन ही इमीडिएटली डिस्कार्ड द ट्रेड. उसके लिए भी उसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब एंट्री लेने के रूल्स हैं, एग्जिट करने के रूल्स हैं. एंट्री लेने के बाद में अगर ट्रेड इज नॉट गोइंग इन हिज फेवर, देयर आर सम रूल्स, और एंट्री रूल्स, एग्जिटिंग रूल्स, risk management rules, also firefighting rules, all these things are already made up by a risk a pro trader. और इसी तरीके से प्रो ट्रेडर का काम करता है. प्रो ट्रेडर डोंट हैव एनी मैजिक विद हिम, pro trader don't have any a golden strategy with him, but the strategy he is executing, he is mastering that strategy. Like Virat Kohli, like Sachin Tendulkar. देखो पहले के जमाने में टेस्ट क्रिकेट होता था, सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, देन वनडे क्रिकेट आया, then Sachin Tendulkar is also playing in one day cricket. In both format he is playing fantastic cricket. He has done a n number of records in his name, on his name. Then 2020 आया and he also did good record in T20. मतलब क्या है कि अपने गेम में कितने भी रूल्स चेंज होने दो, फॉर्मेट कितना भी चेंज होने दो, रेगुलेशंस कितने भी चेंज होने दो, सेबी के कितने भी नॉर्म्स आने दो, द गुड प्लेयर इज स्टिल मेकिंग गुड प्रॉफिट, एंड दैट इज द प्रो ट्रेडर. और हमको वही बनना है. मतलब कोई भी गेम चेंज होने दो, एनी रेगुलेशंस आर चेंजिंग, you have to just make that as a golden opportunity for you and you will convert those things in a profit, or will say in a good trading. और ये pro trader करता है. So whenever he understand that I did a mistake, he immediately discard the trade. मतलब वो कुछ भी नहीं सोचता. और pro trader में और एक normal trader में, मतलब retail trader में यही difference होता है. He is a completely a mechanical trader. He will put all emotions aside. He will not just trade emotions, he will trade only on prices. So that is the most important rule, that is money management. Okay, Parag ji, so money management सबसे important है. So I will just explain these things shortly in this slide. The first thing is what? Emotions. So first of all, broken rule. तो सबसे पहले retail traders के पास में कुछ भी rules नहीं होते हैं. Someday he is following some strategy, other day is following some other strategy, and he is just moving on, one strategy, other strategy, one strategy, other strategy. और उसमें पता ही नहीं चलता कि वो strategy कैसे काम कर रही है, what is the logic behind each strategy.
Okay, and because of that, he is not making his rule book for his strategy, and he don't know where he is doing mistakes. So first of all, you have to make a good rule book, rules about entry, rules about execution of strategy, rules about risk management, how much quantity you have to take trade, future में trade करना है, options में trade करना है, you have to trade in cash, all these things, exiting strategies, profit booking strategies, trade management strategies, all these things you have to make a good rule book, and you have to follow those rules with proper discipline, and you have to follow that rigorously. The next important thing is improper risk in every strategy. जैसे हमने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया, he is taking improper risk, मतलब कोई एक ट्रेड में अलग रिस्क ले रहा है, अदर ट्रेड में अलग रिस्क ले रहा है. So every strategy or every trade he is making a random risk, and that is not good. So everything is random, so other thing, picks are also random, so he is taking trades randomly, and he is jumbling out, मतलब BTST को इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेता है, इंट्राडे को BTST में कन्वर्ट करता है, एंड पोजिशनल ट्रेड को इंट्राडे में कन्वर्ट करता है, इंट्राडे ट्रेड को पोजिशनल में कन्वर्ट करता है. सो इट्स कंप्लीटली जम्बल्ड आउट. So what is important, that every strategy you have to master. If you like that strategy, back test that strategy, उसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स कैसे हैं, उसकी हिस्टोरिकल रिजल्ट्स कैसे हैं, उसको एक्सेल शीट में डालो आप सब. then you will know that I am not get jumble out इंट्राडे इनटू पोजिशनल, पोजिशनल को इंट्राडे में मिक्स नहीं करना है, और BTST और वो सब चीज मेरे को नहीं करना है. अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो, फुल्ली फोकस्ड हो on every strategy, then you will know that you are not doing your business randomly, because I always say, in the last session we also discussed that trading is a business. And see, if you are doing a business, you have to be a disciplined person, a proper risk taker. So you are not taking any things randomly, you are not doing things randomly. The next one, you are all maybe stick with hurry, insecurity, fear, revenge, those kind of emotions. I know that आप लोगों को ये कभी मतलब फील हुआ होगा, जब भी आप ट्रेड करते हो, यू आर फीलिंग विद इमोशंस. आर यू देयर? आप लोगों को ऐसा लगता है? यू आर फीलिंग फियर, इनसिक्योरिटी, हरी, देन रिवेंज, मिसिंग आउट. आप लोगों को ऐसा लगता है जब आप ट्रेड लेते हो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जब ये करते हैं तो उनको यस, बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यस, डेफिनेटली, बिकॉज यू डोंट नो अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान. अगर आपको ट्रेडिंग प्लान पता ही नहीं है तो आप सब लोग ये मिस आउट करोगे. देन नेक्स्ट वन, न्यूज इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड. See, whenever the market is just buzzing with some news, smart players are there. See, market is all about anticipation. The best example is Corona fall. See, market was there at 7,500 level. मतलब कोरोना जब आया तो मार्केट नीचे चला गया, 7,500 लेवल बताया. Then most of people are saying that market will make a new low, 5,000. Some people are saying 6,000. But smart people, those have anticipated the opportunities in the market, because market is always there. जब तक mankind है तब तक market चलता रहेगा, because market is a place where so many sectors are playing. जैसे स्टील है, FMCG है, मतलब साइक्लिकल सेक्टर्स ये चलते हैं. जब एक सेक्टर नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चलता तो कभी वो चलता है. ऑटो नहीं चल रहा तो फार्मा चलेगा. then you have seen that pharma made a huge rally, FMCG stock made a huge rally, IT stocks made a huge rally, और उससे मार्केट धीरे धीरे चलता रहा. एंड सी, द स्मार्ट पीपल आर एंटिसिपेटिंग अ मार्केट. मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, दे आर जस्ट एंटिसिपेटिंग, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके हिसाब से मार्केट चलता है. मार्केट पास्ट में क्या उसका ज्यादा बिलीव नहीं करता, उसके ऊपर वो काम करता है, एंड ही इज फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटी. एंड दैट्स व्हाई स्मार्ट पीपल हैव figure out good opportunities, and they will know that this corona fall, this इंडिया में जैसे WHO ने बताया था कि इतना प्रॉब्लम आएगा, उतना प्रॉब्लम आएगा, देन मार्केट हैड अ पैनिक ओनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. लॉकडाउन जैसे यहाँ मार्केट में गिरावट आई, और जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट ओपनिंग शुरू हुआ, कोरोना फॉल लोगों को पता चला कि दिस कैन बी अवॉइडेड विथ अ गुड हैबिट्स, लाइक मास्क लगाने हैं, और अगर हम सही तरीके से सेल्फ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रहते हैं, रख के काम करते हैं, देन वी कैन मतलब सर्वाइव इन द वर्ल्ड. और फिर मार्केट में जैसे जैसे धीरे धीरे ओपनिंग हुआ,
फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, और फिर जैसे जैसे पैनिक कम हुआ आपने देखा कि मार्केट में ह्यूज रैली आई. सो सी, न्यूज आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड. मतलब न्यूज अगर कोई मार्केट में आती है तो उसमें स्मार्ट प्लेयर या हिडन लोगों को ये सब चीजें पता रहती है. हम जैसे रिटेल लोगों को ये बाद में पता चलती है. सो ऑलवेज मार्केट में क्या होता है कि बैड न्यूज कम आफ्टर द मार्केट, और गुड न्यूज जो रहती है वो मार्केट के लाइव आवर्स में आती है. ऐसा जनरली मार्केट में कोट है. तो वैसे ही हम लोगों ने फॉलो करना चाहिए. न्यूज के बिहाफ पे या किसी न्यूज को हमको कैच नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर न्यूज है किसी स्टॉक में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में और हमारी स्ट्रेटेजी भी उसको बोल रही है कि बाय करो, देन यू कैन जस्ट बाय दैट. if the execution is proper, your strategy is proper, your risk management is proper, then you will just buy that. और लोग बोलते हैं कि आपको न्यूज पे सेल करना चाहिए और रूमर्स पे बाय करना चाहिए. जैसे अभी संजय जी ने भी बोला, बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज. इसको भी मैं कंप्लीटली डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि जब भी मेरी स्ट्रेटेजी में कोई चीज बाय को आती है ना, तभी मैं उसको बाय में सोचता हूँ. I will never follow any news channel or never follow any news that is broadcasting on your print media, on social media, on news channel, because जब तक वो मेरे को नहीं लगता कि मेरे लॉजिक को सही नहीं लगता, तब तक मैं कोई चीज नहीं करता हूँ. और प्रो ट्रेडर भी यही करता है. जैसे फाइजर एग्जांपल लेते हैं कि फाइजर दिन में कंटिन्यूअसली आ रहा है कि फाइजर को ब्रिटेन ने अप्रूवल दे दिया, न्यूज इज देयर, देन न्यूज इज कमिंग आउट दैट इंडिया में वो नहीं चल सकेगा बिकॉज -70 डिग्री टेम्परेचर है, एंड दैट्स वाई कि न्यूज उसमें ट्रांसपोर्टेशन का इशू है. सो बट जब तक फाइजर मेरे को मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो मेरा लॉजिक है प्राइस एक्शन के स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेरे रूल्स के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं बैठता, तब तक मैं उसको बाय नहीं करूंगा. whenever I see that any stock like Pfizer, or Pfizer is just example for at this particular moment, if buy signal is not there with my proper strategy, proper risk to reward ratio, I will not going to buy that stock. जब कोई कुछ भी बोले कि आपको वो बाय करना है, if buy call is there, any panelist or any research analyst is saying buy, but जब तक वो मेरे को नहीं लगता, जब तक मेरे कॉन्शियस को नहीं लगता, मेरे रूल्स एंड डिसिप्लिन को नहीं लगता, आई विल नॉट बाय एनी स्टॉक. एंड दिस थिंग्स यू हैव टू फॉलो रिगरसली, और यही प्रो ट्रेडर करता है. एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर जस्ट मिसिंग आउट ऑल दिस थिंग्स. ओके, द नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी. जैसे हमने बोला, there are only two probabilities in a trading, that will be a winning or that will be a losing. But you have to know, you have to just learn the skill of picking out high probability trades. High probability trades का यहाँ पे simple meaning है, not for just few points. I will just follow risk to reward ratio and I will just make a good reward. That is the high probability concept, high probability trading. मतलब क्या, अगर मेरा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है किसी ट्रेड में, and if I want to anticipating a target of 20 points at least, so it is knowing as 1:2 ratio. And if I anticipate, or if I find out a trade of having 10 point stop loss and there is a probability of getting 50 points, 60 points, 80 points, then I will definitely take that trade. And see, if there is a 10 point stop loss, there is no any logic to book or to take a trade for just 2 points, 6 points, 5 points, 10 points. Because see, आप कोई भी चीज जब भी करोगे, जब उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का जो रेशियो है वो ज्यादा मिलेगा. और इसीलिए लोग बोलते हैं कि आई एम 100% एक्यूरेट, आई एम 70%, आई एम 80% एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट. भूल जाओ, नो वन इज 100% एक्यूरेट इन ट्रेडिंग इन मार्केट. अगर आप मुझे पूछोगे, आई विल ऑलवेज से माय एक्यूरेसी रेशियो इज 50 to 70%, समटाइम 40% also. But I know how to execute the trade properly. In just 40% or 50% accuracy, the trader can be a profitable. क्यों? Because जब वो लॉस कर रहा है, he will book those losses immediately. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 10 ट्रेड्स मैंने लिए, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड मेरे अगेंस्ट गए और 4 ट्रेड मेरे फेवर में गए. So what is the accuracy? Out of 10 trades, 6 trades are losing, 4 trades are winning. So what is the accuracy in this trading? कितना है? Can you tell me? Out of 10, only 4 trades are winning, 6 trades are losing. So what is the accuracy? Yes, 40% only, 40% accuracy. But tell me, in those 4 trades, if those 4 trades you have made 1:4, 1:6, 1:2, and in losing trades
यू हैव नॉट इवन बुक्ड अ स्टॉप लॉस, मतलब 1% का भी अगर रिस्क लेते हो, 1% रिस्क पे ही आपने उसको लिमिट रखा आपके लॉसेस को, या 1% से भी आपने कम रखा, मतलब आपको जैसे पता चला द ट्रेड इज नॉट गोइंग इन माय फेवर, यू हैव इमीडिएटली डिस्कार्ड दैट ट्रेड, तो आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और 40% एक्यूरेसी में भी आपके प्रॉफिट ज्यादा रहेंगे. सो दैट्स व्हाई the pro traders are not behind of accuracy, they are behind of good risk to reward ratio. And see, retail traders are doing these mistakes, taking 10 points stop loss, 15 points stop loss, 20 points stop loss, and they are just booking 5 points. और अब वो मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, द लॉट साइज इज ह्यूज. अगर आपका लॉट साइज 3000 5000 का है, सिर्फ 10 पॉइंट में आपका 30,000 कैपिटल में से वाइप आउट हो जाएगा. बट आप वही अगर 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 10 पॉइंट बुक कर रहे हो, देन दैट इज अ लॉजिक, उसमें कुछ लॉजिक बनता है. And see, that's why I'm telling that trading is a completely a probability game, and you have to learn how to pick out high probability trades for good risk to reward ratio. और वो आपको पता चलेगा जब आप उसको सीखोगे, जब आप उसको लर्न करोगे. Okay, okay, I will show you that in Excel, Rajesh, no issue. Now see, risk management and management of trade, that is other and very important aspect in trading plan. उसको बोलते हैं कि आपको कैसे रिस्क मैनेज करना है. सो फॉर दैट आई विल जस्ट शो यू वन एक्सेल शीट. नाउ सी, ऑल दीज कॉल्स वी हैव गिवन इन आवर टेलीग्राम चैनल. आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल, इट इज अ वेरी सिंपल वे टू जस्ट सी दिस. यू विल जस्ट सी stock pro smm group, and you will just join that group and you will just find out good trades here. हम लोगों ने ये चैनल बनाया हुआ है रिसेंटली, और इसमें हम बहुत सारे कॉल्स दिए और वो बैंग ऑन थे, और उसका एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. नाउ सी, फ्रॉम 26th of November to 4th of December, some calls are there, some calls are intraday, some calls are positional, और यहाँ पे इंट्राडे में अर्ली इंट्राडे कॉल्स भी हमने दिए है. Siemens we have given at 9:20 am, and the entry was 1438, stop loss was 1403. Now you can see there is a 35 point stop loss, and see the stock has achieved 96 points. तो आपका रिस्क कितना है यहाँ पे? 35 points. See the difference between your stop loss and your entry, 35 points, and you have made 95 points, so more than 1:2. Are you getting this? Now I will show you very simple calculation here. Now concentrate, क्योंकि आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now see, a person, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उसका कैपिटल इज सपोज से 50,000 रुपीज है. Now how he is going to do a proper trading, और ट्रेडिंग मार्जिन में इसका कैसा कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको उसमें सिंपल वे में बताऊंगा. सो ये बंदा क्या कर रहा है, इसका कैपिटल इज ओनली 50,000 रुपीज. नाउ इन एवरी ट्रेड ही इज टेकिंग जस्ट 1% रिस्क. Now what is his risk? His risk limited to 1%. So what is his risk now? Capital is of 50,000 multiply by 1% risk. So his limit is only 500 rupees. So his risk is only 500 rupees. In every trade he is taking a risk of 500 rupees. Now in this trade, simply suppose he is taking entry at 1438 and his stop loss is 1403. Now how much quantity he is going to trade in this trade? Very simple mathematical formula is there. His risk is only 500 rupees, limited to 1% of his capital. So he will divide this 500 rupees by the difference of entry and stop loss, that is this 35 point. So his entry is 1438, stop loss is 1403. So he will just trade 14 quantity only. अगर वो 14 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 35, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ट्रेडेड is only 500 rupees. So his risk is limited to 500. Now cash amount required for this 14 quantity is what? Simple, entry that is 1438, cost price मतलब stock price multiply by quantity. 14 क्वांटिटी उसने ट्रेड किया है, 14 क्वांटिटी. So his cash amount is only 20,000 rupees और उसका कैपिटल is 50,000. Now tell me, उसकी पूरी कैपिटल भी उसको ट्रेड करने के लिए नहीं लग रही है.
This is very important concept, or why I don't know that people are just going and telling that SEBI is not making a good regulation. Now I will tell you one more example. Now suppose अगर उसका risk appetite 2% का है, अगर वो अभी beginner level से थोड़ा आगे जाके intermediate trader बन गया और उसने risk को बढ़ा के 2% किया, तो यहाँ पे उसका risk हो जाएगा 1000 का, और वो 1000 के हिसाब से quantity trade करेगा. Now he is going to take 29 quantities. Now see, stock ने high बनाया हुआ है यहाँ पे 1533.9 रुपीस का उसी दिन. 1438 is a buy entry. on 920 को जब मार्केट में most of the people are just सिटिंग असाइड, वो टाइम पे हमने अर्ली इंट्राडे के तहत, अर्ली इंट्राडे स्ट्रेटेजी के इंक्लूजन तहत में ये एंट्री लिया था, एंड स्टॉक मेड अ हाई ऑफ 1533.9, मतलब 96 पॉइंट का हाई, मतलब 96 पॉइंट में अगर हाई को हम कैलकुलेट करते हैं तो 96 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली उसमें बनाए हैं, और अगर उसको कैलकुलेट करते हैं 96 पॉइंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट हुआ है 2700 का. सो 96 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यस ट्रेडेड, 1000 का अगर वो रिस्क ले रहा है और उसको प्रॉफिट आया है 2740 का, मतलब उसका 1:2 से भी ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है. सो एटलीस्ट हमको 1:1 के आसपास में बनाना है. दैट इज द गोल्डन रूल. ओके, नाउ आई विल जस्ट स्टिक टू 1% रिस्क. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं उनके पास में कैपिटल कम होता है, तो उसका रिस्क था 500 एंड ही हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1370. सो मोर देन डबल, ऑलमोस्ट 1:3. नाउ इन द नेक्स्ट ट्रेड अगर आप देखोगे, इसी तरीके से हम लोगों ने सिर्फ 50,000 कैपिटल के हिसाब से ये एक्सेल शीट बनाया है. इन द नेक्स्ट ट्रेड सीमेंस, ये पोजिशनल स्टॉक था. अगर हम कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, सी IRCTC वी हैव गिवन, and you can just see IRCTC. See IRCTC positional call we have given on this channel. Positional traders can take entry at current level of 1360 to 1370. Stop loss was 1310. Target भी यहाँ पे specify किया था 1410, 1452 and 1488. Now what this is written is very important. Always take position by following risk management rules, जो हमने अभी डिस्कस किए या अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द श्योर शॉट कॉल, और ये कॉल में देखो कितना प्रॉफिट आया है. सी IRCTC पोजिशनल कॉल गिवन ऑन 3rd of December, 1360 एंट्री, 1310 स्टॉप लॉस, मतलब 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है. स्टॉक मेड अ हाई ऑफ 1597 ऑन 4th of December. 3rd of December को एंट्री दिया था, 4th of December को 1597 का बाय मिला है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जो पॉइंट्स गिवन है दैट इज 237. अगर हाई को मैंने कैलकुलेट किया, मतलब ये जो एक्सेल शीट बनाया है दिस इज अकॉर्डिंग टू हाई स्टॉक हैज मेड, मतलब स्टॉक ने जितना हाई बनाया उसके हिसाब से बनाया है. अभी आप मुझे बोलोगे सर यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड द थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक मेड अ हाई. अगर आपके पास में गोल्डन रूल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी लिखा है द T2 अचीव टारगेट 1, अचीव टारगेट 1, अचीव टारगेट 2 अचीव्ड. In most of the stocks, in all stocks, at least T1 is achieved. अगर आपके पास में ये गोल्डन रूल है, कहां पे आपको एग्जिट करना है, कहां पे आपको स्टॉक में बना रहना है, देन यू कैन से 1410 को आपने एग्जिट किया तो कितना प्रॉफिट हुआ है. सी, मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मैंने पहला टारगेट दिया था. 50 पॉइंट इज अ रिस्क, 1360 बाय 1310 इज योर स्टॉप लॉस. 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है. द फर्स्ट टारगेट इज 50 पॉइंट्स, 1360 प्लस 50, नेक्स्ट वन प्लस 50, लाइक मतलब उसके आसपास में जो हमारे चार्ट में दिख रहा है उसके आसपास में. एंड ये टारगेट तो सारे तोड़ ही दिए स्टॉक ने, ये तो सारे बना ही दिए. स्टॉक मेड अ हाई ऑफ 1597. सो ऑल टारगेट्स आर रीच्ड एंड 1597 इज मेड. अगर आप ये कॉल्स अगर देखते हो चैनल में और आप खुद एक्सेल शीट बनाते हो, देन यू विल फाइंड आउट दैट ऑल द थिंग्स, ऑल द ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट. जैसे ये IRCTC में 237 का प्रॉफिट आया है on just risk of 500 rupees, guys. See, 10 quantities he has traded, 50 point stop loss, 500 risk. Okay, in every trade the risk is constant. If you see, every trade the risk is constant, 500 rupees risk.
एंड इन एवरी ट्रेड यू हैव मेड अ प्रॉफिट. अगर आप T1 T2 को भी प्रॉफिट बुक करते थे तभी भी आपको प्रॉफिट आता था. सी ऑल द ट्रेड्स. IRCTC 237. Yesterday in the Bharti Airtel we have given a intraday call was there and entry was triggered. 484.7 was the stop loss. So almost 5 point was the stop loss. Stock made a high of 497. So more than 5 point. So 1:1 के भी आगे इसमें हमको प्रॉफिट मिला है. So T1 is achieved. So this way we have made everything on a calculation basis, on a mathematical formula. So nothing is a magic and nothing is there which is to be just considered. All the things are mechanical. So that's why I want to tell you, if you see all the calls, see Polycap we have given, and see if you just find out the Polycap trade here, you just see Polycap and all the commentary was there. If you join this channel, if you see all the things, see Polycap we have given a buy call, positional buy was there, 950 was the entry, 897 was the stop loss, and first target was 973, 1020. Now see, if you see now, stock has made a high of 1005. So 500 risk, 1:1 is achieved. So in this way, you have to make this kind of Excel sheets, you have to make proper risk management and trade management, and you will see Dawat call was there. And if you just search, all these trades are available. Dawat, see Dawat call was there. तो ये सारे परफॉर्मेंस शीट जो हमने बनाई है, बाय कॉल्स जो भी दिए या जो भी कॉल्स हमने इंट्राडे या पोजिशनल बेसिस पे दिए, सभी दिया हुआ है. सी 52 इज एंट्री, 47 स्टॉप लॉस. मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 5 पॉइंट का टारगेट रहेगा. सो फर्स्ट टारगेट इज अचीव्ड एंड नियर अबाउट टारगेट 2 तक भी स्टॉक गया था. सो यू कैन सी T2 अचीव्ड एंड 500 के उस पे आपने जब तक हाई बनाया स्टॉक ने, सो ऑलमोस्ट T2 इज अचीव्ड. 740 टारगेट, 740 प्रॉफिट वाज देयर. MGL was given, that was early intraday strategy. ये बहुत कम लोग करते हैं और जो लोग जनरली बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट एंड 10 बजे के बाद में उनका ऑफिस रहता है, उनका बिजनेस रहता है. सो दे विल टेक एंट्री एट नियर अबाउट 9:15 to 9:20, 9:25 एंड दे बुक द प्रॉफिट इवन बिफोर पीपल आर नॉट टेकिंग एंट्री. मतलब पीपल जब तक एंट्री नहीं करते स्टॉक में, स्टॉक को सर्च करते ही रहते हैं, तब तक हम लोग बुक प्रॉफिट भी बुक कर देते हैं. मतलब आप आपका बिजनेस कर सकते हो, आप आपका जॉब कर सकते हो, आप आपकी जो भी प्रोफेशन है आपको एंजॉय करते हुए आप मार्केट में पार्टिसिपेट हो सकते हो. एंड ऑल द थिंग्स आर विथ अ प्रॉपर रूल एंड डिसिप्लिन. मतलब यहाँ पे कोई भी रैंडम चीज नहीं है, कोई भी रैंडम स्टफ नहीं है. ओके, सो सी MGL was given 1012 एंट्री, 983 was the stop loss. So 29 पॉइंट का डिफरेंस है. 56 पॉइंट मतलब नियर अबाउट 1:2 स्टॉक ने अचीव किया है. सो 500 रिस्क, 972 इज द रिजल्ट. L&T फाइनेंस यहाँ पे दिया था, दैट वाज अ पोजिशनल, 80 was the entry, stock made a high of 91, 75 point is the stop loss. And see 500 risk, 1130 is your profit, that is our result. So in this way if you calculate ओवरऑल रिजल्ट, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ऑन रिस्क ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज अ पर्सन कैन मेक 12,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट. नाउ यू विल से दैट जब ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये ऑफकोर्स मैंने जो स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है. तो अगर ये 12,000 भी नहीं बनता है तो एटलीस्ट मतलब ये 24 to 25% हो गया आपके कैपिटल के हिसाब से. सी if I will calculate this profit divided by your capital, that is 50,000, so that is near about 20%. अगर मैं इसको परसेंटेज में लेता हूं, सो 24% इज द प्रॉफिट. अगर आपका 24% भी नहीं रहा है, अगर T1 पे ही आपने स्टॉक को एग्जिट कर दिया या T2 पे एग्जिट कर दिया, आपने हाई बनाने का वेट नहीं किया, स्टिल दिस अप टू 10%, 15%, isn't it? Now tell me, in just 1 week time with a proper risk management, अगर आप 10, 15, 10% या 5% भी बना सकते हो, 5% भी बना सकते हो, तो कौन सा बैंक आपको या कौन सा चीज आपको 5% या 2% भी देगा. और सी एट बिगिनर्स लेवल मैं आपको बताता हूं,
मैं जब बिगिनर लेवल पे काम करता था, इवन आज भी मैं अगर प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता हूं तो मैं प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। प्रो ट्रेडर्स या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो लॉसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, वो लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। अल्टीमेटली इफ यू आर मिनिमाइजिंग योर लॉसेस, प्रॉफिट विल बी मोर। लॉस को मिनिमाइज करना मतलब अल्टीमेटली क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अगर आप पूरे मंथ में जब आप बिगिनर हो अगर 4% 5% भी प्रॉफिट बनवाते हो और आप कंपाउंडिंग वे में अगर आप इसको देखते हो, सो दैट वुड बी 50 to 60% इन ईयर। और आप इसको अगर कैपिटल को कंपाउंड करते हो और आपके रिस्क बनाते हो, जैसे आपका कैपिटल अभी सपोज 50,000 है और एंड ऑफ द ईयर आपका अगर प्रॉफिट 25,000 रहा, सो योर न्यू कैपिटल विल बी 75,000 and now your new risk will be 750 rupees instead of 500 rupees। और आप एक साल अगर मार्केट में काम करते हो, जैसे बिजनेस में बोलते हो कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ यू कैन हैंडल अ बिजनेस फॉर 1 ईयर, तो आप बिजनेस के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख जाते हो। और आप बिजनेस में एक साल अगर बन के रहते हो ना, देन यू विल डेफिनेटली डू गुड थिंग। और मार्केट में यही प्रॉब्लम है और यही चीजें है कि लोग ज्यादा मार्जिन लेके काम करते थे और सेबी ने वही करना बंद किया। अगर यहाँ पे देखते हो कि 500 का रिस्क लेके अगर आप काम करते हो तो कैश अमाउंट आप देखो, कोई भी कैश अमाउंट 50,000 के ऊपर नहीं गया है। आर यू गेटिंग दिस? 50,000 के नीचे ही कैश अमाउंट है। और अभी भी सेबी ने रूल बनाया है कि इफ यू आर डूइंग इंट्रा डे 4 टाइम्स लिवरेज यू कैन डू, मतलब अगर आपका कैपिटल 50,000 है सो यू कैन डू और यू कैन एंजॉय अप टू 2 लाख कैपिटल, मतलब 4 टाइम्स का लिवरेज आपको मिलता है। 50,000 कैपिटल है सो यू कैन टेक अ मार्जिन अप टू 2 लाख रुपीज। तो अगर एक रिटेल ट्रेडर को अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके काम करना है तो मार्जिन का कोई भी इशू नहीं है। मार्जिन का इशू डेफिनेटली किसको आता था, जो ऑप्शंस को सेल करते थे। ऑप्शन को सेल करने के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन लगता था, लेकिन अभी मतलब अभी ज्यादा लगेगा, पहले इतना नहीं लगता था। अभी ऑप्शन में क्या होता था कि 50,000 1 लाख कैपिटल वाला भी बंदा दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑप्शंस, and if options are not going in favor, whole capital is just wiped out in 1 or 2 trades। मतलब रिटेल बंदे को मार्केट में एंट्री करते समय उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता था एंड बिकॉज ऑफ दैट इन 1 मंथ ऑफ टाइम वो मार्केट के बाहर हो जाता था एंड ही विल मेक हिज ओन लॉजिक दैट मार्केट इज अ गैम्बलिंग, मार्केट इज नॉट माय स्टफ एंड मार्केट इज नॉट डूइंग दैट। और उसका पर्सपेक्टिव मार्केट के बारे में निगेटिव हो जाता था। नाउ टेल मी, a retail trader with a just 1%, 2%, 3% risk taker, 4% risk taker, still he can just do a proper intraday trading with a golden rule। अभी अभी मुझे आप एक बात बताओ, इफ यू आर टेकिंग 500 रिस्क एंड कंटिन्यूअसली अगर 4 से 5 अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं फिर भी आपका 2000 या 2500 कैपिटल ही कम होगा, देन मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। एवरी टाइम तो आपको लॉस आएगा नहीं, कभी आपको प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस आएगा, कभी प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस आएगा। मतलब ये कंप्लीट कैपिटल वाइप आउट होने के लिए उसको बहुत सारा दिन लग जाएगा और तब तक ही विल बी अ गुड एक्सपीरियंस ट्रेडर, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। और धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि मार्केट में बने रह के प्रॉपर रिस्क टेकिंग या प्रॉपर स्ट्रेटेजी या प्रॉपर स्किल अगर मैं लर्न करता हूं, देन आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और यही एक रिटेल ट्रेडर करता नहीं है, दैट्स व्हाई he is just unaware of the things of market, how to learn a proper skill और रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड्स अगर वो नहीं जानता था, नहीं जानता है रिटेल ट्रेडर, दैट्स व्हाई ही इज जस्ट नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई द थिंग्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट 1% इज योर स्टॉप लॉस एट बिगिनर। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, यू आर जस्ट डूइंग अ कॉन्फिडेंस, you are just increasing the confidence in your level, at level best you can increase your risk appetite। और 50,000 का रिस्क कैपिटल है आपका एंड यू आर जस्ट डूइंग इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में तो लॉट साइज बहुत होती है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी स्टॉप लॉस, किसी स्टॉक का लॉट साइज है 3000 एंड योर स्टॉप लॉस इज 10 पॉइंट्स, इन अ सिंगल ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है योर 30,000 विल बी वाइप्ड आउट। योर कैपिटल इज 50,000, 30,000 इज वाइप्ड आउट। आप में करेज ही नहीं रहेगा कि आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। सो दैट्स व्हाई अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, सो यू लर्न दैट गुड, मेक अ गुड रूल बुक एंड हाउ टू मैनेज योर ट्रेड। मतलब कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, 1:2 book some profit, 1:4 book some profit, 1:8 book some profit। So all these are exiting techniques and
you will just know all these things. अगर आप वो प्रॉपर वे में लर्न करते हो, किसी से सीखते हो, तो ऑल ये जो सारी चीजें जो ट्रेडिंग प्लान में होती है वो आपको सीखने मिलेगी. सो दैट्स व्हाई एट अल्टीमेटली आई विल से दैट रिटेल प्लेयर्स क्या करते हैं, जस्ट फ्यू पॉइंट्स के लिए वो ट्रेड को बुक करते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स को वो स्टॉप लॉस हिट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई विथ अ गुड एक्यूरेसी रेशियो वो अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते. सो दैट इज आवर टुडेज डिस्कशन. Okay, and this is a disclaimer that this presentation is for educational purpose only. Trading and investing for any kind of involves risk. While it is possible to minimize risk with proper trading skills, your investments are solely your responsibility, and it's imperative that you conduct your own research. We merely sharing our opinion with no guarantee of gains and losses. This is a disclaimer, and if you have any questions in your mind, so you can ask me. And between that, this is our contact slide. This is our Telegram channel. You can just search this Telegram channel. On Telegram, you have to download this Telegram channel, and you just search Stock Pro SMM and join that button, and then you will know the commentary about market. आपको calls के बारे में पता चलेगा, आपको जो early intraday strategy है उसके बारे में पता चलेगा. And this is our YouTube channel. You just search out Stock Pro and just go on this channel. You will find out many educational videos. और एक वीडियो जो आप सबको लिए मैं मस्ट बोलता हूँ देखने के लिए, दिस अर्ली मॉर्निंग इंट्राडे ट्रेड्स. और दूसरा एक वीडियो है इंट्राडे, ये जो वाला है स्टॉक प्रो अर्ली मॉर्निंग इंट्राडे ट्रेड, ये आप देखना. और इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड ये जो है ये भी आप देखना. दिस इज मस्ट वॉच वीडियो गाइस. ये आपको अगर अच्छा लगता है आप शेयर करना आपके दोस्तों के साथ में, और आप उसको लाइक भी करना. सो ऑल दिस थिंग फ्रॉम अस. दिस इज अवर वेबसाइट. Now I will hand over the things to Sachin. Sachin, if you just want to say something. Sachin is there? Yes, Parag ji, can you hear me? Hi Sachin, are you there? हाँ, good evening. How are you? Okay, now question time. सर आपने स्टॉक प्रो का अलग टेलीग्राम चैनल क्यों क्रिएट किया? सी आप जो पहले वाला चैनल था वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. वी हैव मेड वन मोर चैनल बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन सम अदर स्ट्रेटेजीज फॉर एसएमएम बैच, जो एसएमएम के लिए डेडिकेटेड रहेगा चैनल. आप वो भी चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. ओके, कैन यू हियर मी Parag ji? नेक्स्ट वन. That was the demand from the people that you have to just do some kind of stuff. So that's why we have made all these channels. How can you say that entry level and exit levels? Can you explain? एंट्री लेवल मतलब जो भी स्ट्रेटेजी हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, सपोज ORB जो तो बहुत फेमस है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी. दैट इज 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट. अगर ये स्ट्रेटेजी मैं लेता हूँ, ओके, नाउ सी 15 मिनट्स ORB में होता क्या है कि पहले 15 मिनट्स का हाई अगर स्टॉक ब्रेक करता है, सी दिस इज फर्स्ट 15 मिनट हाई, दिस कैंडल, तो उसके ऊपर वो एंट्री लेता है. नाउ दिस कुड बी एंट्री इन दिस स्टॉक. मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं आपको. सो दिस वुड बी द एंट्री. अगर आप ये लेवल को प्रॉपरली एंट्री नहीं लेते हो, आप उसको उस मतलब 740 सपोज इसका एंट्री है, 740 के ऊपर में अगर आप कैच करते हो ट्रेड को, ट्रेड सडनली ऊपर चला गया, मतलब 745, 770, 747, तो आप ट्रेड को कैच करोगे और आप किसी भी टाइम किसी भी रॉन्ग लेवल पे एंट्री करोगे, उसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. कैन यू हियर मी नाउ Parag sir? कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होके वो स्टॉक बाउंस कर जाते हैं, तब हमको क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या मुझे अगेन एंट्री करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? सी दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी. आपको आपके स्ट्रेटेजी का लॉजिक पता होना चाहिए. अगर आपको आपके स्ट्रेटेजी का लॉजिक पता नहीं है और वो बैक टेस्टिंग आपने नहीं किया हुआ है, देन हाउ कैन आई से. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको आपके स्टॉप लॉस लेवल पे काम करना चाहिए. क्या आप कहीं गलत जगह पे स्टॉप लॉस तो नहीं लगा रहे हो? बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. when I am in long positional trade and there is a gap up next day, will there be a loss in my trade? When I am in long positional trade,
गैप अप अगर होता है तो आपको फायदे में रहेगा ना वो तो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है स्टॉक में। सी गैप अप को भी ट्रेड करते आना चाहिए। गैप अप को तो गैप अप में गैप अप स्टॉक इसलिए जाता है क्योंकि उसमें कुछ ह्यूज बाइंग है, बट वो सस्टेन कर रहा है, अगर प्रॉपर एंट्री लेवल पे आपको मिल रहा है और सस्टेन कर रहा है, देन यू कैन थिंक टू ट्रेड। Hello. Sachin, I think you are there. Yeah, I am here, but my voice is not audible, I think. I Can you hear cannot me hear now? you, Sachin. I think there is some problem with the audio. Just a moment, guys. Just a moment. Can you hear me now? Yeah, can you hear me now? I think it's unmuted now. Yes, Sachin. Yeah, can you hear me now? Hello. I think some audio issues there with Sachin. Yeah, yeah. There is some audio लॉन्ग टर्म problem. इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें? सी दिस देयर आर सम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपको फंडामेंटल देखना चाहिए, उसका उसका पी देखना चाहिए, उसका आरओसी देखना चाहिए, उसका आपका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, एंड देन डेफिनेटली यू हैव टू सर्च आउट फॉर टेक्निकल चार्ट्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? तो अगर आपको स्टॉक प्रो का कोर्सेज अगर ज्वाइन करना है, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे आपको stockproonline.com पे आप विजिट करना, देयर इज अ कॉन्टैक्ट अस, you just click on the contact us, okay, and you can just call to our team on this number. WhatsApp number is there. uh, Also you can just call on this number, and our courses, you just click on the courses, you can just go smart money multiplier course, you can see the contents of this course. ये course सबके लिए बना है, for beginners to advance, okay, and all the strategies we are going to discuss, those are price action based strategies, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेके रिस्क मैनेजमेंट, देन पोजिशनल ट्रेडिंग, the strategies of positional trading, price action based strategies for intraday trading, early intraday trading, supply demand zone, then risk, high risk to reward, how to just trade और how to scan high probability trades, और इसके अलावा हम ऑप्शन भी उसमें सिखाने वाले हैं, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग बोथ, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन एडजस्टमेंट्स। उसके अलावा हम आपको 6 मंथ का टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको ऐड करेंगे, आपके जो क्वेरीज रहेंगे आप मेंटर्स के साथ डिस्कस करेंगे, then you will get recorded videos, access of this website, you can just visit on this, okay, so all these things are available to you. उसके अलावा लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे इसमें, एंड आपके जो भी इश्यूज रहेंगे वो आप आपके टेलीग्राम चैनल पे आप डालते रहना, आपका प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनेगा, प्राइवेट लिंक रहेगी आपकी, उसमें आप डेली लाइव वीडियोस या डेली लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकोगे, एंड एक्सेस इज फॉर 6 months, यू कैन रिपीट द कोर्स आफ्टर 6 months also, Santosh. So if you have any question about course, SMM course, you can ask. Sachin, you have joined again, but some problem is there because I have already made you a panelist. I will try again if I can. Just a moment. Just give me some time.
Just to give me some time. Sachin. Sachin, you are not getting here. You are not available here. Yes, what is your question, Sanjay? You can just repeat your question, Sanjay ji. So if you have any question, if you are interested to join this course, because इसमें आपको फ्री रिकॉर्डिंग मिलेगा, 6 मंथ का सपोर्ट मिलेगा, उस 6 मंथ्स के बाद आप कोर्स रिपीट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो प्रीमियम एडवाइजरी कॉल्स है उसमें आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड करेंगे हमारे टीम मेंबर्स। यू कैन गो गेट ऑल द कंटेंट्स, कॉल्स ऑफ रॉकस्टार ग्रुप, प्रीमियम एडवाइजरी ग्रुप, ये आपको सब फ्री में मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ये कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल आपके जो फोन नंबर से यहाँ पे शेयर करना, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। डू आई नीड टू दिस कोर्स ऑल्सो? संजय फिर से रिपीट करो आपका क्वेश्चन। आई एम ऑलरेडी डूइंग मार्केट प्रोफाइल कोर्स, डू आई रिक्वायर टू दिस कोर्स ऑल्सो? सी दिस कोर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स देन मार्केट प्रोफाइल। ये कोर्स स्टॉक में इंट्राडे, पोजिशनल, और ये पूरी तरीके से एक ऑल इन वन कोर्स है। राजेश, यू आर सेइंग एक्सेल शीट टेलीग्राम पर शेयर करोगे क्या? सी दिस एक्सेल शीट ऑलरेडी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सब लोग, आपको वहां पे एक्सेल शीट दिखेगा ये। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्स यू कैन आस्क। चार्जेस, इसका जो कोर्स का जो चार्जेस है वो 35,000 है। यू कैन जस्ट विजिट ऑन दिस वेबसाइट, एवरीथिंग एवरी स्टेप इज अवेलेबल टू यू। यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस आवर टीम। आपको इसके बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप आपका नंबर यहाँ पे शेयर कर देना, प्लीज शेयर योर नंबर। ओके, योर डाउट्स विल बी क्लियर फ्रॉम आवर टीम। एक्सेल शीट टेलीग्राम पर शेयर करना। सर डू यू रिकमेंड ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम? ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मेथड चाहिए। जो मैं अर्ली इंट्राडे स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेता हूं, जो आप सभी के लिए रिकमेंडेड भी मैं करूंगा, क्योंकि वो तो सबसे पहले हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। उसको टाइम लगता है स्किल आने के लिए, लेकिन अब आप उसको प्रॉपर वे में सीखोगे, लर्न करोगे, देन यू विल डेफिनेटली डू दैट। बट उसके लिए आपको स्किल चाहिए। आई हैव डिस्कस ऑल टॉपिक्स संजय जी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, एवरीथिंग। सी ऑलरेडी our time is over, so we can just keep that thing. Okay, so if you have any question regarding our picks for Monday, मैं आपको रफली बता देता हूँ। there are some stocks on my radar, but उसके एंट्रीज वगैरह अभी टाइम नहीं है, टाइम निकल गया है। so Laurus Lab was there, India Mart was there, SpiceJet was there, IRCTC, बंधन बैंक, रेमंड उसका रहेगा। मैम ऑलरेडी वो पोस्ट करेंगे आपके लिए, और मेरे को अगर टाइम मिलता है तो आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो फॉर दैट, या टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो दैट वुड बी बेटर। So the people who are interested to join our courses, just please share your contact number. If you want to just give your contact number, that would be a better idea. So our team will contact you. See, you can just join our Telegram channel. आपको पता चलेगा, वो live रहेगा। Okay, Samuel, you have given your number. So other people who are just interested, क्योंकि ये कोर्स मैं बताता हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कोर्स है। अगर आप ये सीखोगे, आप यू विल सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप लर्न करोगे, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, इंट्राडे, पोजिशनल, आप जॉब करके ये सब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टॉक प्रो ऑफिशियल SMM ग्रुप। ओके, हम लोग वो आपको लिंक वो कर देंगे, आप लिंक ज्वाइन कर लेना इसका। ओके, सो आई विल शो यू दिस चैनल अगेन, स्टॉक प्रो ऑफिशियल। ओके, दिस इज द चैनल स्टॉक प्रो ऑफिशियल स्मार्ट मनी मल्टीप्लायर। ओके, सो आप ये सर्च करके ज्वाइन कर लेना। ओके, URL आप जो आपका जो हमारा स्टॉक प्रो का जो चैनल है,
दूसरा वाला जो मतलब पुराना चैनल है उसके ऊपर लिंक डाल देंगे, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज अवर चैनल। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो कंटेंट से पसंद आए होंगे, और आपके कुछ भी अगर क्वेरीज है रिगार्डिंग स्टॉक्स, रिगार्डिंग सॉरी रिगार्डिंग कोर्सेज और दैट, यू कैन जस्ट call on our WhatsApp number or our number that is given on website, है ना, ये वाली जो नंबर है हमारा, you can visit on this number, you can just call on this number, okay? एंड आप पोस्ट करना आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, जस्ट पोस्ट हियर सो अवर टीम मेंबर विल कैच यू। यस यस ऑफ कोर्स आप कॉल करना मयंक, इसमें जो कंटेंट्स है वो हम जो एसएमएम कोर्स में पढ़ाएंगे आपको, दोज आर वर्थ। मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, प्रोफेशनल पीपल देगा भी नहीं, बट दिस कोर्स वुड बी अ वर्थ फॉर यू, क्योंकि मैं जो सीखा हूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट से लेके पोजिशनल, इंट्राडे, ऑप्शंस, दैट इज द एड ऑन टू यू, आप वो कर सकते हो, आप सीख सकते हो, और दिस इज लॉन्ग टर्म, वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको रिपीट भी करने मिलेगा कोर्स ये, आपको अलग अलग टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में आपको उसका लिंक मिलेगा, आपको कॉल्स मिलते रहेंगे, एडवाइजरी प्रीमियम, दैट इज द फ्री स्टफ्स, दोज आर अवेलेबल टू यू। एंड सी, मैं तो ये बोलता हूँ, जो लोग आप जॉब कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं पैसिव इनकम चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरे को कोई म्यूचुअल फंड बाय करना है, कोई स्टॉक बाय करना है, तो मैं क्यों मेरा कोई अलग न्यूज चैनल देखूं? इफ आई कैन नो हाउ टू रिसर्च, हाउ टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स एंड हाउ टू लर्न ऑल द स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग, तो दैट इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉपर वे में अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो किसी को चीज पूछने की जरूरत नहीं, कोई न्यूज चैनल लगाने की जरूरत नहीं आपको। सो यू कैन जस्ट मेड गुड पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, ऑप्शंस, इंट्राडे, लाइक दैट। So this course is definitely a worth for all, from beginners to advanced। मतलब ये आप अगर करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको ये सीखने मिलेगा। सो आई विल से कि जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो प्लीज आपके नंबर शेयर करना, हमारी जो टीम है वो आपको 100% कांटेक्ट करेगी। मतलब ये आप अपना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करके आपका प्रोफेशन एंजॉय कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। एंड सी, ऑल दी स्ट्रेटेजीज आर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। कुछ चीजें इंडिकेटर बेस्ड भी है, लेकिन वो बहुत कम मिलेगी आपको, और वो भी वर्थ मिलेगी। ओके, सो वी हैव डन फॉर टुडे। if you are interested, you can just post your numbers, your phone numbers here, and we'll meet again with some other stuffs that are for free for you. ओके, आपके लिए एक डेमो क्लास अगर फिर से किसी को चाहिए, डेमो एसएमएम का डेमो क्लास चाहिए, सो वी कैन अरेंज दैट डेमो क्लास फॉर यू फॉर स्मार्ट मनी मल्टीप्लायर कोर्स। आप प्लीज आपके फोन नंबर शेयर करना, तो आपके लिए हम डेमो क्लास अरेंज करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी फॉर डेमो क्लास, एंड दैट इज फॉर फ्री। मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ पैसे देने हैं, यू हैव टू पे सम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर दैट। सो एटलीस्ट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी यू कैन शेयर योर नंबर्स। Okay, so you can just post your share, you can just post your phone numbers, your contact numbers here, so you can get to know your our next demo class that could be scheduled in the 1 or 2 days। तो आप आपके फोन नंबर शेयर कर देना यहाँ पे। सो आई विल जस्ट वेट फॉर 1 minute और सो। तो डेमो क्लास के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड है फॉर फ्री डेमो क्लास, यू कैन जस्ट पोस्ट योर फोन नंबर्स, योर कॉन्टैक्ट नंबर्स, so that is opportunity freely available to you। प्लीज यस, अभी लोग शेयर कर रहे हैं, सो विल वेट फॉर 1 minute। प्लीज यू कैन शेयर, so we can handle out your queries। yes, for demo class, that is for sure, that is for free। yes, please post your numbers for demo class, क्योंकि ऑलरेडी क्वेरीज हमारे पास में डेमो क्लास के लिए आई है, सो वी कैन ऐड योर नंबर्स, वी कैन सेंड यू रजिस्ट्रेशन लिंक, our team will contact you on your phone number, so please share your phone numbers। okay, so I hope that you like this stuff guys। जो चीजें हमने डिस्कस की, those are worth। yes, please share your numbers, people are now sharing, thank you। एंड दिस इज जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, मतलब बिगिनर से एडवांस लेवल में कैसे जाना है, ये पूरा हम एसएमएम में आपको लर्न करवाने की ट्राई करते हैं।
यस प्लीज ज्वाइन, और आप सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, आप स्टॉक प्रो में अर्ली इंट्राडे वाले जो भी वीडियोस है वो ज्वाइन मतलब देखना. So okay guys, thank you for your time and your patience. I hope the contents we have discussed here, those are worth, those are like, and we'll meet soon in demo class. Please contact our team for demo class, and if you are given a number, then our team will definitely contact you. Okay guys, then thank you, take care, bye bye.